अस्सलाम एवरीवन। सो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हरम कदीम मस्जिद नबी कदीम में। दिस इज़ अब्दुल वासिफ भाई, माशाल्लाह ही इज़ शोइंग अस अराउंड। हिस्ट्री बताएंगे और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस। मैं इंशाल्लाह इनका डिटेल इंट्रो कराता हूँ, बट राइट नाउ इन हरम अल कदीम इंशाल्लाह। Let me show you the original Masjid al-Nabawi, which was made by Prophet Isa salam. So we are right now inside gate number 2. Right. This area is like called the old mosque of Prophet Isa salam. Yeah. So in this area, how can you point out the original Masjid al-Nabawi, which was made at the time of Prophet Isa salam? Yeah. Okay, so can you see these pillars over here? Yeah. These pillars are black, and then you can see the pillars which are golden, which have like the golden lions and a small golden flower on it. So if you can just see this this pillar which has the golden colored flower on top of it, so this is the one I'm referring to. So this points out the original Masjid al-Nabawi, which was created by Prophet alayhi salam. So that points out that. So these, if you can see it, the pillars are from here 1, 2, then it will go on until there. Yeah. Okay, it's kind of like a rectangular shape. That is Masjid al-Nabawi, which was created originally by Prophet alayhi salam. Yeah. Okay, so as we all know that when Masjid al-Nabawi was created, the Qibla was towards the direction of Al-Masjid al-Aqsa, Yeah. basically. So the Qibla was towards that direction on the left. Right. It was here. And then what happened is when the ayahs of when Allah told Prophet ﷺ that the Qibla direction has been changed, so Prophet ﷺ changed the direction of Masjid Nabi, and the construction of Masjid Nabi got changed a little bit. Yeah. So what happened is that at initially the Saff al-Awwal, or the first row for the prayer, used to be over here. Right. Okay, then the direction changed and went over there. Right. Okay, you can see also the golden colored pillars over there. Yep. So it went to that exact row over there in that area, basically. So Prophet ﷺ prayed over there. There is a pillar called as Istawan al-Aisha Siddiqah radiyallahu anha. He prayed over there for basically a few days, and then afterwards he went to Mihrab, Right. where the Mihrab was, where the current Mihrab is, basically, right? So this is the original Masjid Nabi created by Prophet ﷺ. Then in 7th year after Hijrah, when Prophet ﷺ had extended Masjid al-Nabawi, the mosque from that, this golden pillar, it Right. went until here. Okay, you can see that this pillar is a bit different one. Yeah. So on top it's mentioned had Masjid Nabawi. So the had, or the boundary of Masjid al-Nabawi actually became until here. So also the mosque was extended from the back side and also this side as well. Right. Okay. At the time of Prophet ﷺ, only one companion of Prophet, his name is Sayyidina Usman ibn Affan radiallahu anhu. Only he had an opportunity to contribute with his money for the construction of Masjid Nabi. Otherwise, each and every part of the construction for Masjid Nabi was done by Prophet ﷺ with his own resources. Right. Right. So this is the mosque of Prophet ﷺ. You know where we're standing right now? It is inside the gate number 2A, and we're exactly standing in the area where the house of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu used to be. Wow. So we are actually standing right now in the house of Sayyidina Abu Bakr. So, mashallah tabarakallah. So if you see from here, it's mentioned that how the whole height of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu means. So Fawqa literally means that small house, or a very small kind of house. So this is the house of Sayyidina Abu Bakr. Okay, so initially there was a space between the house of Sayyidina Abu Bakr and the house of and the Masjid Nabi. There used to be some space. Right. But then Prophet ﷺ extended Masjid Nabi, his door, and some of the people who were staying in this area, their doors started to open within Masjid Nabi. Prophet ﷺ asked every single person to close their door except
Allahumma salli ala Muhammad, except Sayyidina Abu Bakr said yes, you can have your door of your house can still open inside Masjid. Amazing. So this is the house of Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr had 3 houses in Medina, so this is one of them. Right. Okay, so in this row there were some other houses, the houses of the aunts of Prophet alayhi salam, Atika, Safiya. So they used to stay actually in this area, which you can see right. Right. So it was. Okay, there's another question. Often people ask that how tall or how high was Masjid al-Nabi at the time of Prophet alayhi salam. I can show that to you a little bit as well. Right. If you can, I'm not sure if you can zoom on that pillar which is white and beige color. Okay, on top of that you can see the leaves hanging on the top. Yep. Okay, so that is the height of Masjid Nabi at the time of Prophet ﷺ. So it was about 2 meters high. Right. Yeah, Right. it's right there. Right. There's quite a lot of misconceptions about this area. Like one of it is this. If you can see this boundary right now, this is a place. This is the door of the house of Prophet ﷺ, which is the house of Aisha Siddiqa radiyallahu anha, was right behind this area. So this is a door as well. It's closed right now for the management purposes. Yeah. But this door can be so you can go inside from this door actually, but it's closed right now. So this is the door between the house of Prophet ﷺ, like the house of Aisha Siddiqa radiyallahu anha, and Masjid Nabi was almost in that area. Yes. So also the door was connected to the courtyard area. So behind this area almost was the courtyard area of the house of Prophet ﷺ. This is an important thing for us to know. Other than this, the area which is right around us, a lot of important houses of companions used to be. So the house of Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu used to be over here. The house of Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu used to be here. And the house of the uncle of Prophet ﷺ, Abbas radiyallahu anhu, it was migrated from that area to here as In well. the corridor. Yeah, here, actually, this area. So this is where this house used to be actually. The house of Sayyidina Abbas radiyallahu anhu. Yep. Yeah. Abu Ayyub Ansari, I think his house was outside. Where exactly do you think? There, outside. Outside, but where? I think that gate, Babi Jibreel. No, it's not. I'll take you there. Okay. Inshallah. We'll do a proper one, inshallah. Because that area is like incredibly important, and we should cover it in as much detail as possible. Yeah. Right. And also in this area, right behind this area, was the house of Abdullah ibn Masud radiyallahu anhu. He had 2 houses, so one of the houses was here. Right. The most important thing actually that we must cover inshallah is when you go to say salam to Prophet ﷺ, because that is and there are so many misconceptions about that area, and people don't understand where they're standing when they're there. So inshallah, let's cover it. Inshallah. Assalamu alaikum everyone. So welcome back. Basit bhai is with me. और इससे पहले हमने देखा था मस्जिद नबवी में शुरू में कि माशाल्लाह how was the construction at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basit bhai explained it very well. अभी हम यहाँ हैं जी, ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक. So we'll be going inside and Basit bhai is going to share some fascinating information inshallah. So चलें Basit bhai. आजा इधर से शुरू करते हैं. Yes, let's अली भाई. inshallah. So first of all, बहुत सारे लोग जो कि मक्का मदीना आते हैं वो देखना चाहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कंस्ट्रक्शन कैसे थी. तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन थी वो बासाल्ट के पत्थरों से होती थी बेसिकली. तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु. तो यहाँ पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ईद की नमाज़ें पढ़ाई हैं. सो यू कैन सी दी स्टोन्स, हाउ द स्टोन्स आर पुट टुगेदर बेसिकली. तो ये बासाल्ट रॉक्स हैं जो कि उस वक़्त से हैं जब तकरीबन सन 75 हिजरी से है, जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू किया. तो ये उस वक़्त से. तो आप मदीना की हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जो पत्थर सबसे पहले मिले उन्होंने उनको पहले नीचे लगाया बेसिकली. उसके बाद में दे बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट. तो आप देखेंगे तो पूरी जो दीवार है उन्होंने उसको प्रिजर्व इस तरीके से किया है कि ये पुराने और बसाल्ट के पत्थरों से बनी हुई. आप देखेंगे कंप्लीट पत्थर नहीं है जी. अच्छा, अब मैं आपको मदीना की हुकूमत ने इस लैंडमार्क को कैसे रिस्टोर किया है, कैसे प्रिजर्व किया. अच्छा, अब यहाँ पे आप जो बासाल्ट रॉक्स देखते हैं ना, ये कंप्लीट रॉक्स हैं और इसको ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है. तो आपने देखा कि एक ओल्ड और जो एक न्यू कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने इस मस्जिद को कैसे रिस्टोर किया. और आप अंदर आ जाए इस और ये इससे आपको मदीना में मतलब थोड़ा सा समझ भी आएगा. सही. वेलकम टू मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु. तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा. अच्छा, मदीना इज़ अ सिटी. मदीना एक ऐसा शहर है
क्योंकि जैसे रसूल सल्लल्लाहु का शहर है, उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की, फिर उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की, फिर उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की। तो आप इधर से देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अब ये कंस्ट्रक्शन देखें, ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन वो है जो कि काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन 75 हिजरी और उसके बाद की कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन है ये उस्मानी एम्पायर ने और बाद में उमवी एम्पायर ने इसको कंस्ट्रक्ट करके इसको रिस्टोर करने की कोशिश की, ठीक है। और इसके बाद में आप ये देखिए, ये शैंडलियर से आप देख सकते हैं, ये कुछ हद तक उस्मानी स्टाइल का शैंडलियर है। जी हाँ, अब जो लोग इस्तांबुल जा कुबा में भी ऐसा ही है। जी जी जी, जो लोग जा चुके इस तरीके से ये है। और आप ये देखिए, ये पुराने ने मेहराब को उसी तरीके से रिस्टोर किया। और आप कैलीग्राफी देखें, ये पुराना खत्तल सुलूस है, ऐसे ही ये पुराना खत्तल सुलूस है जो कि काफी पहले से चल रहा है। और ये उस्मानी मसाजिद आप ज्यादातर देखेंगे इस्तांबुल में कहीं भी सही ये नजर आएगा। तो ये एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। अब मदीना की हुकूमत ने और इनकी विजन 2030 के मुताबिक और एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसका नाम है पिलग्रम एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ठीक है। तो पिलग्रम एक्सपीरियंस प्रोग्राम के मुताबिक मदीना में इंशाल्लाह पहले फेज़ में, जो कि इंशाल्लाह बिज़नेस ताला 2030 तक है, अबाउट 50 to 55 लैंडमार्क्स को तकरीबन इसी स्टाइल से प्रिजर्व किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जब फ्यूचर के अंदर आएंगे, यू विल बी एबल टू एंजॉय मदीना एंड इट्स सराउंडिंग्स इन अ मच मोर बेटर वे। आप बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात को प्रोटेक्ट करेंगे जिनका ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं हुआ, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से उनका ताल्लुक है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से इन्होंने ये जो मस्जिद गमामा है, इसको भी कुछ हद तक इन्होंने इसी तरीके से प्रिजर्व किया है। और ये मदीना की एक तरीके से इधर की हुकूमत ने बड़ा क्लियर तरीके से कानून पास किया है कि जो भी आपको पुराना आर्टिफैक्ट मिलेगा, आपने उसको उसी तरीके से बेस्ट तरीके से रिस्टोर करने की कोशिश करनी है, उसमें से कोई भी चीज़ चेंज करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। सो हम कुबा जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। ये इसको क्या कहते हैं बासित भाई? ये गोल्फ कार्स हैं। इन्होंने मदीना की हुकूमत ने मस्जिद नबी और कुबा के दरमियान एक पूरी एक कनेक्टेड एक रोड बनाई है, जिसके ऊपर सिर्फ या आप चल के जा सकते हैं या गोल्फ कार जा सकते हैं। तो उनका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है कुबा से रिलेटेड, जिसमें वो कुबा मस्जिद को तकरीबन कोई 55 लैंडमार्क्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाल्लाह। आप घर दिखा रहे थे साहब? जी जी, मैं आपको ये सामने दिखाइए, मेहराब तैयबा होटल है। सही जी। तकरीबन इस इलाके में सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि मौज़िन है, उनका घर होता था तकरीबन इस एरिया के अंदर। और यहाँ पे अली भाई, ये पीछे इसके पीछे वाले एरिया के अंदर एक वादी होती थी, उसका नाम है वादी बाथान। सही। तो बाथान असल में जन्नत की एक नदी थी जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी, बट अब नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जन्नत की नदी है, उन्होंने उसके अंदर अपना लौब दहन भी डाला था बेसिकली। और वो जो वादी है उसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्र के बराबर है। अल्लाह। ये जगह मैं दोबारा दिखा दूँ। ये अभी हम यहाँ से होकर गए मस्जिद अबी बकर, और ये मस्जिद गमामा है। ओके, सो तब तक आई थिंक थोड़ा इंट्रो भी क्योंकि मैं चाह रहा था आपका इंट्रोडक्शन सरप्राइज रखें। सो दिस इज़ हाई टाइम बिकॉज माशाल्लाह द गोल्फ कार इज़ मूविंग, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बासित भाई, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंशाल्लाह? Yes, my name is Basit Khan. I am living in Medina for 11 years. और मैंने जब से हिजरत की है, this is the best time ever in my life. मैं कंसल्टेंट हूँ मक्का और मदीना में कुछ की एंटिटीज़ का, उसमें मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी भी हैं और कुछ और भी एंटिटीज़ हैं। तो तारीख़ का बहुत शौक़ है, तारीख़ बड़ी स्टडी भी की है, और एक पैशन है कि तारीख़ शेयर की जाए सबके साथ, अपनी यूथ के साथ स्पेशली, ताकि उनका मक्का मदीना से कनेक्शन और जुड़ सके। जैसे मैं अली भाई को अक्सर कहता होता हूँ कि मक्का मदीना एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक की जगह है, क्योंकि ये हरम है। हरम मीन्स कि यू गेट प्योरीफाइड ओवर हियर, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो एक बेटर तरीके से हो सकती है। तो दैट्स व्हाट दीज प्लेसेस आर एंड यू नो, थैंक यू सो मच अली भाई। बासित भाई, ये इस वक्त हम कहाँ हैं? हम सर मस्जिद नबवी से कुबा जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है मदीना की हुकूमत ने इसको इस तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि तकरीबन नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से हिजरत करके आए थे मस्जिद नबी के लिए में, उसके राउंड अबाउट है। तो इसको डेकोरेट भी वैसे किया मदीना के कल्चर के लिहाज से। आप देखिए जो आपको लाइट्स नजर आ रही है ना, ये मदीना के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ज़्यादातर आपको जो दुकानों के बोर्ड्स भी नजर आ रहे हैं, तकरीबन एक ही तरह के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, उन्होंने सिमिलर तरीके से ब्रांडिंग यूज की है। आइकॉनिक बोर्ड्स। अच्छा, और मजे की बात बताऊँ आपको अली भाई, ये जो आपको फॉन्ट नजर आ रहा है ना, जिसके अंदर ज्यादातर नाम लिखे हुए हैं, इधर से दिखाइए नाम लिखे हुए हैं, ये
जो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ से लिखा हुआ जो कुरान है, ये फॉन्ट तकरीबन उससे इंस्पायर्ड है। अच्छा जी जी जी। और ये मदीना की जो नई ब्रांडिंग और नई लुक के अंदर आता है। और अब यहाँ से हम क्योंकि कुबा मस्जिद जा रहे हैं तो हमें जाते हैं तकरीबन अराउंड 10 मिनट का टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंग्स टू टॉक अबाउट। एक्सीलेंट, एक बार बस दिखा दे, बहुत ज़बरदस्त राइड है जी, वेरी आइकॉनिक माशाल्लाह, वेरी जी। ओके गाइस, सो बासित भाई कह रहे हैं कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, चलें देखते हैं, लेट्स सी इंशाल्लाह व्हाट द सरप्राइज इज। अहमद भाई इज आल्सो विद अस माशाल्लाह। सो बासित भाई excited, let's see. Yes, even I'm कर सकते थे क्योंकि कभी कभी सैलाब आ जाता था। यहाँ पे वादी थी, वादी में सैलाब आया था, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर में आके नमाज पढ़ दें और हम उसको फिर मस्जिद बना लेंगे। तो नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामने नमाज पढ़ी, इस सामने जगह दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और आप उसको उसी तकरीबन कुछ हद तक उस कंडीशन के अंदर आप माशाल्लाह। और ये रॉक्स जो भी ये क्या इसे कहते हैं हम, ये बसाल्ट रॉक्स, ये उसी दौर के, जी बिल्कुल ही उसी दौर के, उसी तरीके। और इमेजिन आप वो मट्टी देख रहे हैं जहाँ पे तकरीबन उस एरिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हुई। अल्लाह, सो इमेजिन दैट। ओके बासित भाई, सो वेयर वी आर हेडिंग राइट नाउ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हिजरत का जो सफ़र है हम उसको एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको ये लैंडमार्क दिखा रहा हूँ कि मस्जिद जुमा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, हिजरत के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा मस्जिद से तकरीबन सुबह के वक्त निकले फजर पढ़ के, और उसके बाद में इस एरिया के अंदर आए। और आपको ये जगह दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपने सुना हर बंदे का एक शौक है कि यार मैं मदीने की गलियाँ देखूँ, और मदीने की वो गलियाँ देखूँ जो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की हैं। तो एक ही गली बची है इस वक्त जो कि रसूल अलैहि सल्लम के ज़माने की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। और वो कुबा है सामने कुबा मस्जिद है। तो अली भाई ये रोड जो है ना, ये तकरीबन मोर और लेस उसी हालत में और उसी जगह के ऊपर है जहाँ पे रसूल अलैहि सल्लम जिस एरिया से चल के वो हिजरत करके आए, और जब वो मस्जिद नबी से कुबा जाते थे तो इसी तरह से जाते थे। अली भाई ये जगह दिखाइए,
यहाँ पे करके घर होता था जो हरम बिन मलहान का घर यहाँ जी पे हाँ, होता जी था। हाँ, जी हाँ। तो हरम बिन मलहान का बहुत सारे लोगों को पता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सहाबी हैं Yes, बेसिकली वो। yes, और yes. उनका एक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस एरिया में आते थे कुबा के लिए, तो यहाँ पे आके इनके घर रुका करते थे, कुछ खाया करते थे बेसिकली। तो एक दफ़ा वो खाते खाते सो गए बेसिकली। तो उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि वो इंशाल्लाह यूरोप की फतवात आ रही हैं, सारी आ रही हैं। तो हरम ने इनको बाद में बोला कि आप मेरी दुआ करें, मैं भी वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे शहीद हूँ। और प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, उन्हें उठने का दुआ कबूल हुई है। तो फिर हरम वहाँ भी गई, वहाँ पे साइप्रस की तकरीबन एरिया में गई। अच्छा। एंड देन शी एक्चुअली फेल डाउन फ्रॉम अ हॉर्स एंड शी एक्चुअली एम्ब्रेस्ड हर शहादा ओवर देयर। तो हर हाउस वाज देयर। और ये अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंटी थी। सही सही। और सही। बहुत औरतों से मुतल्लिक बहुत सारी अहादीस जो हैं जी। वो हरम बिन मलहान से वो क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वो रोड है। जी जी, ये वो मदीने की पुरानी गली जो कि एक ही रह गई।
जब वो उन्होंने नशीद पढ़ी थी सबने मिलके, यू आर शोइंग दैट प्लेस राइट। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बासित भाई, दिस इज ग्राउंड जीरो इन योर टर्मिनोलॉजी, द प्लेस जहां वेलकम किया गया हमारे नबी को। सुभान अल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट हिजरा लिटिल बिट। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बहुत प्यार करते थे। जब मक्का से निकलने लगे तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मक्का के लोग जाने के लिए मजबूर नहीं करते तो मैं कभी भी नहीं जाता। तो उन्होंने जो मदीना की तरफ हिजरत है इसकी जो प्लानिंग काफ़ी देर से चल रही थी। तो औस और खजरत जो दोनों कबीले हैं वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में मिल रहे थे। वो मिना के पीछे एक मस्जिद है, वहाँ पे मिल रहे थे बेसिकली काफ़ी टाइम से। तो एक तो रिलीजियस रीज़न है थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इधर आने की, और बाकी और भी रीजंस थी। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, हर तरह के चैलेंजेस थे। वहाँ पे इस्लाम नहीं फैला सकते थे। पहले उन्होंने हबशा पे हिजरत करने की कोशिश की और कुरैश ने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्लान उनका इतनी से नहीं कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब इधर के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहे थे तो उन्होंने फिर मदीने की तरफ हिजरत का इरादा किया। अच्छा, तो इन लोगों को क्या असल में वजह थी बेसिकली कि वो मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए आए और इधर के लोगों ने इनवाइट किया। तो मदीने के अंदर उस वक्त अच्छा असल में मदीने की जियो लोकेशन हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। ये एक ट्रेड राउट का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉप होता था। जो लोग एशिया से आते थे वो पहले मक्का से और जद्दा के एरिया से होते हुए फिर यहाँ से गुजर के मदीना से गुजर के फिर शाम और बाकी उस एरिया के अंदर जाते थे। तो यहाँ पे यहूदी आबाद थे काफ़ी सालों से। तो यहूदियों ने ना इधर के लोगों को एक तरीके से बहुत तंग किया हुआ था। तो वो मदीने के अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त होती थी। वो उसके अंदर मोनोपोलाइजेशन के अंदर बिल्कुल मोनोपोली थी उनकी यहूदियों की, और जो ट्रेडिंग करते थे उनमें भी यहूदियों की मोनोपोली थी। तो यहूदी जो माल किसी और से लेते नहीं थे अपने यहूदियों के अलावा, तो ये लोग उनसे बड़ा तंग थे। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये लोग मिले तो दिस वाज आल्सो अ रीज़न फॉर देम टू कम ओवर हियर। और वहाँ पे जो मक्का के अंदर जो कुफार की वजह से जो मुसलमान जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े इफेक्टिव थे। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक आल्सो विन विन सिचुएशन फ्रॉम इकोनॉमिक पर्पसेस एज वेल। सो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र करके ऑलमोस्ट 14 दिन का सफ़र करके आए तो तकरीबन यहाँ पे मोर और लेस इधर करके एरिया होता था उनको वेलकम किया गया। तो दिल्ली भी बड़ी आइकॉनिक जी, ये इधर करके तरीक ज़बी एक है बिल्कुल। लेट्स मी स्टार्ट देन। यस ताला अल बद्रु अलैना मिन तानियातिल वादा। अच्छा, अब तलाल बद्रु अलैना बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया बहुत दिन से हमारे लिए। मिन तानियातिल वादा, तानियातिल वादा से। अब तानियातिल वादा क्या है? तानियातिल वादा वो जगह है जहाँ पे रुखसत किया जाता था बेसिकली। तो मदीने में 2 रुखसत करने की जगह थी। एक तकरीबन इस एरिया में थी जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रुखसत करने की जगह थी 2 पहाड़ों के दरमियान में से जगह थी। तो इधर उन लोगों को रुखसत किया जाता था जो लोग शाम से ट्रेडिंग करके आते थे और मक्का की तरफ जाते थे, और जो मक्का से लोग आते थे इधर से ही आते थे। तो इसलिए कहा गया मिन तानियातिल वादा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इधर ऑलमोस्ट वेलकम किया गया था। और यहाँ पे किसने वेलकम किया था? यहाँ पे औस कबीले ने वेलकम किया था इन प्राइमरी एसेंस कुलसूम इब्न हदम रदियल्लाहु अन्हु जो कि इस एरिया के सरदार थे, और साद इब्न खाइसामा रदियल्लाहु अन्हु जो कि ऑल्सो एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वालिहाना तरीके से इस एरिया में इस्तकबाल किया था। तो इसलिए मैं इनको अली भाई कह रहा था, अली भाई ये है ग्राउंड जीरो। और इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले जो ज़्यादातर सहाबा है ना आ चुके थे मदीना, वो ऑलमोस्ट इस एरिया में, ये जो आप लैंडमार्क देख रहे हैं ना, इस एरिया के राउंड अबाउट कुछ थे और कुछ खुदा मस्जिद की है। भी आ चुके थे। जी, वो लोग आ चुके थे ऑलरेडी बेसिकली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से कैसे पहचाना? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको पता है ट्रेड करते थे, और ट्रेड के अंदर पहले वो इस एरिया से किसी हद तक गुजरा करते थे बेसिकली। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट? तो ये दिखाते हैं इस जगह का नाम है मस्जिद मिसबाह। कुछ मौरखीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी पहली फजर की नमाज है हिजरत के बाद तकरीबन इस एरिया में पढ़ी। सही। और इस मस्जिद का एक और नाम है, इसको कहते हैं मस्जिद बनी उनैफ। ठीक। तो बनी उनैफ, मस्जिद बनी उनैफ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कबीला आबाद था, उसका नाम था बनी उनैफ बेसिकली। तो उसके बड़े जी इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट सहाबी बच्चे थे, उनका नाम था तलहा इब्न बरा रदियल्लाहु अन्हु। तो वो बीमार थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज्यूश किड है? नहीं, he wasn't a Jewish, he's Muslim. Okay. क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप बच्चे थे, आप मेरे से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते थे। कहा अच्छा,
वो तुम्हारे वाले जा रहे हैं, उनको मारो मारो। तो वो भागे, उनका नहीं आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू, कम बैक। एंड देन ही बिकेम वेरी मच इल, द बरा एज अ किड बिकेम वेरी मच इल। तो उनका आखिरी तकरीबन टाइम आ गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के एरिया में थे। देन ही वाज टोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के ऐसे हो रहा है। तो उनको सहाबा ने बोला प्लीज आप नहीं जाएं क्योंकि यहूदियों का खतरा है। उन्होंने कहा नो आई विल गो। ही केम ऑल द वे ओवर हियर टू से गुड बाय एंड आल्सो ही प्रेयड इन द मस्जिद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहमद भाई जरा अंदर से देखें और दिखाएं। सुभान अल्लाह। सो देखिए मदीने की हुकूमत ने इस मस्जिद के साथ अगेन दोबारा क्या किया, आप देखिए रिस्टोर कैसे किया। पुरानी कंस्ट्रक्शन लेके, अच्छा कुछ बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं पुरानी कंस्ट्रक्शन कब के दौर की है। आइकॉनिक, वो देखिए कुरान कैसे रखा है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये तकरीबन सन 75 हिजरी से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सन 75 हिजरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 60 ऑड इयर्स आफ्टरवर्ड्स उन्होंने ये प्रिजर्व करना मसाजिद को शुरू कर दिया था। और ये मेहराब है कि हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन इस एरिया में नमाज पढ़ी। अल्लाह क्या बात है जी। ये वासिफ भाई मतलब पीपल शुड नो दीज थिंग्स, पाकिस्तानी पीपल स्पेशली और इंडियंस हमारे आते हैं बड़े। क्या मतलब यार आप यू रीलिव द सीरा। दैट इज द एंटायर आइडिया। और हम क्योंकि कुबा में हैं तो कुबा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इफ यू मे अलाउ मी। तो कुबा असल में एक फिलॉसफी है। आज आपको फिलॉसफी समझाते हैं इंशाल्लाह। कुबा का जो फ्लोरा एंड फौना था, मतलब यहाँ की इधर की जो आबो हवा थी, इधर की जो नेचुरल ब्यूटी थी उस वक्त बहुत ज़बरदस्त थी और अभी भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर होता था वो डिफरेंट होता था। कुबा के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर होता था तकरीबन 5 से 10 डिग्री कम होता था बेसिकली। क्यों? इधर की फ्लोरा और फाना की वजह से और इधर की आबो हवा की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे बागात होते थे और यहाँ पे दुनिया का पहला वाटर इरीगेशन सिस्टम होता था। अच्छा। पानी के नकास का जो पहला दुनिया के अंदर निज़ाम बना है तकरीबन इस एरिया में बना था और उसका नाम था आइनुल ज़ुरक़ा। तो वो था स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम, यानी जब खोदते थे ना नीचे से तो ऐसे आग की तरह पानी निकलता था, स्प्रिंग की तरह पानी निकलता था। तो यहाँ पे डिफरेंट कुएं थे, वो कुएं आपस में एक नदी के जरिए कनेक्टेड थे। उनका पानी ऐसे था कि एक कुएं से पानी आया फिर दूसरे कुएं से पानी आया, वापस में सारा कनेक्टेड था। ऐनुल ज़ुरक़ा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए तो फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को पानी से साफ करते हैं। जो दूसरे पारे की आयत तो वो नाज़िल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस और तहारत बहुत करते थे। एब्सोल्युटली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस एरिया में आए हैं ना तो उन्होंने आके बेसिकली उनका मेन मकसद हमेशा से क्लियर था कि वो इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। तो उन्होंने मदीना में आके पहला काम क्या किया, उन्होंने आके औस और खज़रज कबीले की सुलह कराई है। अच्छा जी, अभी ईशा पढ़ने लगे कुबा में। जी बिल्कुल। एक और सरप्राइज है जी, बताइएगा। कुबा में नमाज पढ़ने की फजीलत तो उमरा, बिल्कुल उमरा तो है। हाँ। और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है, वो कहते हैं कि अगर मुझे एक तकरीबन महीने का सफ़र करके भी सिर्फ इसलिए आना पड़ता कि मैं कुबा में नमाज़ पढ़ूँ तो मैं ज़रूर आता। और उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरे हदीस है, वो असल में खलीफा थे और सफाई कर रहे थे मस्जिद की पूरी। खजूर की एक शाख को लेकर ना सफाई कर रहे थे। कहते कि मुझे कितनी दिनों का भी सफ़र करके कुबा नमाज़ पढ़ने के लिए आना पड़ता है तो मैं आता। और कुछ मौरखीन ये भी बोलते हैं कि जो कुबा है, कुबा में उमर फारूक कहते हैं नमाज़ पढ़ना जो है ना वो प्रेफर करते कि इधर नमाज़ पढ़ें कि और अलक्सा में नमाज़ पढ़ें। वो उन्होंने कुबा को अलक्सा से फजीलत दी है अपने लैंग्वेज। यार कितने फजाइल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिस चेंजेस एवरीथिंग, यानी व्हेन यू ऑफर सलाह हियर एंड यू इंटरनलाइज दिस जो आपने माशाल्लाह कहा। जी जी। सो इंशाल्लाह जी। कैन आई से अनदर थिंग दैट इज कि कुबा असल में है क्या, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खज़रज कबीले की सुलह मदीना में करवा दिया तो उन्होंने उसको एक टीम बिल्डिंग, उन लोगों को एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी दी कि आप सब कुछ छोड़ के टीम बनाएं। ठीक है। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी पता क्या थी जी? कुबा। आप सब कुछ छोड़ के अल्लाह की याद के लिए आप मस्जिद बनाएं। सो दैट वाज अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। ओके जी, अप नेक्स्ट अल खातिम वेल। सो बहुत फेमस स्टोरी है जी।
जी अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई एक ब्रांड आइडेंटिटी पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मदीना में कहीं भी ये ब्रांड आइडेंटिटी नजर आएगी ना, ये ऐसा मार्क नजर आएगा कहीं भी मस्जिद नबवी में या कहीं में भी आपको लैंडमार्क नजर आएगा, दैट मींस इट्स अ हिस्टोरिकल वेल। बिल्कुल तो सही। पूरे मदीना में ये चीज स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ अगर आप मस्जिद नबवी के अंदर जाए, वहाँ पे कारपेट हटाते हैं कुछ भी ज्यादा तो आपको साइन नजर आएगा। सही है। अच्छा, देयर यूज्ड टू बी हिस्टोरिकल वेल ओवर हियर, इट्स नेम इज खातिम। खातिम मतलब सील बेसिकली। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो एज वी नो के जो लेटर साइन करते थे तो उनके पास एक रिंग थी, वो रिंग को एज अ स्टैम्प यूज करते थे। ठीक है। तो दैट रिंग वाज पास टू अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, देन इट वाज पास टू उमर अल खत्ताब रदियल्लाहु। So he came and he sat over here and said that you'll be in Jannah. Then similarly, Umar al-Khattab radiallahu anhu, and then Uthman bin Affan radiallahu anhu came and then they were told that they will be in Jannah. So that is why this well is extremely important. मतलब जब आप यहाँ पर आए, सुभान अल्लाह, when you come here, imagine आपने तो कई बार खाया। जी जी बिल्कुल मासूम। क्या बात है। It's really good local special. Very healthy माशाल्लाह। Yes, indeed. So I'm gonna order. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लें जी ये सुभान अल्लाह जी, एक तो मासूम मेरा फेवरेट, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी अरबिक डिश है और बाकी चीज़ें ये बासित भाई ने हमें सरप्राइज, यार सरप्राइजेस बड़े देते हैं बासित भाई माशाल्लाह, ही लव सरप्राइजेस। तो कह रहे हैं कि अरबिक डिश है, बाकी भी जज़ाकल्लाह खैर अखी। सो बासित भाई लेट्स चेक। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, नाइस माशाल्लाह। ये एक तरीके से ये चिकन कब्सा है। ओके। कब्सा इनकी नेशनल डिश है। ये मुगलगल है, which is chicken cooked in oriental way. Right. And let's see what do we have over here. Okay, these are falafel. Falafel as well. This is vegetarian and this is very nice. ठीक है। Immersive. मासूब भी आ रहा है हमारा। जी जी बिल्कुल मस्त। मासूब इंशाल्लाह आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। मासूब इज हियर, मासूब हिजर। वेयर इज इट? दिस अल्लाह अकबर। ये जरा बासित भाई, कैन यू हैव द ऑनर्स टू? Absolutely. वेरी हेल्दी जी माशाल्लाह। इंग्रेडिएंट्स आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, लेकिन बहुत मजे का बनाना का टेस्ट आता है। आई थिंक दलिया है या आटा है सूखा हुआ। इसके अंदर टिपिकली डेट्स होती है, बनाना होता है और कुछ बड़ी हेल्दी चीज होती है। Yes. This is honey. और इसमें नट्स भी हैं, काफ़ी नट्स और हनी हम डाल दें, बाकी माशाल्लाह। सो मिलते हैं डिनर के बाद इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू मस्जिद नबवी एरिया। बासित भाई, व्हाट्स नेक्स्ट? सो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत के लिए कुबा से चले, उसके बाद में मस्जिद जुमा रुके। मस्जिद जुमा रुकने के बाद फिर इस एरिया में आए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल कि रसूल सल्लल्लाहु का जो इस्तकबाल है मदीना में तकरीबन 3 दफ़ा तो 100% डॉक्यूमेंटेड है। सही। तो एक दफ़ा मस्जिद जुमा
सॉरी मस्जिद कुबा के करीब वाले एरिया में हुआ जो हमने आपको पहले जहाँ पे तलाल बदरू अलैना जी वो पढ़ा गया। देन इट हैपेंड इन बेसिकली अराउंड मस्जिद जुमा, क्योंकि खज़रज ट्राइब में आए थे। उसके बाद में जब इधर आए थे इस एरिया में फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया गया था। तो इस एरिया में जो कबीला आबाद था ना, जहाँ पे भी मस्जिद नबी है, जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं, उस कबीले का नाम है बनु अदी इब्न नज्जार, बेसिकली जो कि खजरत कबीले की ब्रांच है। अच्छा, ये कबीला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परदादी है ना, द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ प्रॉफेट अलैहि सल्लम, her name is Salama, she is the one who was from this tribe. So a lot of people ask question that was Prophet ﷺ linked with Medina in any way earlier? So yes, he was, and we're taking it to the exact place where Prophet ﷺ came as a kid with his mother and stayed, because he knew that, he obviously knew that his ancestors are from there, his great grandmother is from there, and his और father. ये सरप्राइज होने लगा ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह, जो मुझे पता है, बट लेट्स इंशाल्लाह कीप इट फॉर द ऑडियंस इंशाल्लाह जी। So ये अली भाई ये दिखाते हैं। So देखिए हम ये मस्जिद नबी, मस्जिद का मामा इस तरफ है, मस्जिद का मामा। तो ये एरिया है, यहाँ पे एक ट्राइब रहता था, उसका नाम है बनु अदी इब्न नज्जार। सही। So this tribe, like I mentioned, the great grandmother of Prophet ﷺ was from this tribe. And when Prophet ﷺ was a kid, he actually came and he stayed in this very area. So Subhanallah. yes. Gee, so the great grandmother of Rasulullah sallallahu, she was from this area. Absolutely. So Prophet ﷺ's father, when because we know that he used to trade, when he was in this part of Medina, he actually became sick and he passed away as well in more or less the area which is behind this building you see. Basically. Okay, so Prophet ﷺ came almost in this area. He stayed in this area, basically. And then what Rasulullah ﷺ छोटे होते वक्त खेला करते थे, यहाँ पे करके ना almost इधर करके एक तालाब होता था almost इस area में. So he used to play with the water in this area. Okay, I need to ask your audience, because there's a small surprise over here. Who among you really love cats? So if you love cats, I'm sure you would know. All of them. Okay, great. So you would know Abu Hurairah radiyallahu anhu. Yes. Right? Let me show you the house of Abu Hurairah radiyallahu anhu. Subhanallah. Okay, so Abu Hurairah radiyallahu anhu used to live in more or less this area. ये मैं बता दूं, सामने गुंबद है, as you can see inshallah. जी, अच्छा. So Abu Hurairah radiyallahu anhu. And look, there is a cat. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Hello, sweetie. That's where she's resting right now. So Abu Hurairah radiyallahu anhu. जी उनका घर यहाँ पे है। इस जगह में होता है ना, तो एक छोटी सी स्टोरी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की ये है कि he had 2 doors of his house and उस वक्त ये सारे जगह पे ना गलियां होती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए आते थे ना, तो वो उधर से एरिया से आके इधर आते थे, फिर यहाँ से टर्न होके फिर उस एरिया में जाके ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे। तो बेसिकली वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के ना एक डोर के करीब से गुजरते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से कि मुझे अपने घर का दरवाजा इतना अजीज है कि उसके अगर इवन बराबर गोल्ड भी मुझे दिया जाए ना, उससे भी ज्यादा मुझे। अल्लाहु अकबर कबीरा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये सामने मस्जिद नबवी, एज यू कैन सी गाइस। सो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उस टाइम पे तो काफी फार अवे है ये घर। Yes, so but he used to be in the mosque always, Ashab as-Sufa. Who? Abu Hurairah. Yes, and also here as well. Yeah. So I need to communicate a few other things to the audience, because हम जिस एरिया से आए हैं ना, जो कि मस्जिद का मामा वाला एरिया, वो थोड़ा सा एक रिमोट एरिया था। वहाँ पे मार्केट होती थी जहाँ से भी अब आए हैं, उसका नाम था सूक मनाखा। ठीक है। बेसिकली सूक मनाखा वो जगह है जो कि मुसलमानों की मार्केट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी जूश मोनोपोली को तोड़ने के लिए। दुनिया की पहली पहली टैक्स फ्री जो मार्केट है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसका नाम है सूक मनाखा। तो इन्होंने जूश मोनोपोली को कैसे ब्रेक किया था, क्योंकि इस वक्त जूस 2 तरह के टैक्स लेते थे मदीना के अंदर, एक कैपिटल टैक्स और एक इनकम टैक्स लेते थे। ठीक है, राइट। और जो कैपिटल टैक्स और इनकम टैक्स लेते थे, और इन्होंने एग्रीकल्चर में भी मोनोपोली रखी हुई थी अपनी, और इसके अलावा इन्होंने ट्रेड में भी मोनोपोली रखी हुई थी। तो जू कोई जो यहूदी था, वो ट्रेडर, वो किसी यहूदी जो किसान या किसी भी फार्मर से, उसके अलावा किसी से खरीदता नहीं था। बिल्कुल सही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए किया। तो मदीना के जो बाकी रिहायशी थे, उनको उन्होंने जो फार्मर्स की जो गुड्स वो
उनसे ली, और जो मक्का के जिससे जो लोग आए थे जो कि एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे उनको आपस में मिला दिया। सही, So that was the अमेजिंग genius यार, strategy of अमेजिंग Prophet ﷺ. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही इकोनॉमिकली एम्पावर किया सहाबा को, यानी दिस इज लीडरशिप बासित भाई। Oh, इट्स absolutely. वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ रियली नीड टू लर्न फ्रॉम दिस कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जो है वो कितनी ज़रूरी है। Oh, 100%, sir. May I say, Prophet ﷺ was a brilliant strategist Yep, in yep. business and in so many other ways. Yes. And this is, we call him the best of all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So of course he's the best Best of in the best. everything. Yes, he's the best. Subhanallah. He's the best, mashallah. Sallallahu tabarakallah, alayhi wa sallam. basically. So now we are walking, and we're also walking. Consider like Prophet ﷺ's camel was more or less walking from the area where we're going. सुभान अल्लाह, अच्छा, तो वो यहाँ पे अल्लाहु अकबर कबीरा। गुजर के उनकी जो शी कैमल थी, her name is Kaswa. She was going actually more or less in this area. सही। And we're gonna go to the area where actually he stopped by and he actually stayed. उनका दोबारा इस्तकबाल किया गया था. He was welcomed once again in a very, very vibrant way, to taking you to that specific area right now. Right. Okay, so यहाँ पे बनु नजार रहते थे, the Khazraj tribe basically. सही। और बनु नजार, which was the best of the tribes of Medina as per Prophet ﷺ, the Banu Najjar tribe. They used to live in this area सही। basically, ठीक which है। are the branch of Khazraj tribe, just for the sake of Sirah perspective. Right, right. Right. So I'm going to take you to the place and show you where Prophet ﷺ actually migrated, and we're going to also say Salam to Prophet ﷺ, इंशाल्लाह, and also we'll cover a few other elements as well, inshallah. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Okay, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले बता दूं जी, हम सलाम करने भी जा रहे हैं, और हमें बासित भाई एक सहाबी, सरप्राइज सहाबी, और वो स्टोरी से भी कनेक्टेड है, जो इन्होंने बताया ना कि नबी वसल्लम की ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उनसे भी कनेक्टेड है। सो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर यहाँ पे सामने है, सामने जो छोटी सी बिल्डिंग है ना नजर आ रही, इसके साथ करके अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था, जहाँ पे वो रहा करते थे बेसिकली। और अबू अय्यूब अल अंसारी इज कनेक्टेड टू द ग्रेट ग्रैंडमदर ऑफ रसूलुल्लाह Yes, सल्लल्लाहु from the tribe, because ये दोनों सेम बनु नजार ट्राइब से basically. So yes, so their tribe was more or less similar, may I say. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी है तकरीबन उधर आके रुकी थी उस एरिया में जी, आपके सामने वाला जो एरिया जहाँ पे बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सही। तो वहाँ पे जब ऊँटनी रुकी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे उनको बड़ा वालियाना तरीके से बनु नजार के जो लोगों ने इस्तकबाल किया था, and they were reciting very good poetry at that time, and Prophet ﷺ asked them, do you love me? 3 times, and they answered yes, yes, yes. Prophet ﷺ जो घर है वो बासित भाई एग्जैक्टली ये आप let me point it out for you. Yeah. So अली भाई, वो आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, almost इस एरिया में था। स्क्रीन जो नजर आ रही, राइट राइट हाँ जी, राइट ये let me say, yeah, almost here, राइट almost in this area, राइट right next to the screen. So यहाँ पे उनका घर था, वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का। यहाँ पे तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जो हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिहाज से तकरीबन 7 महीने रुके हैं शायद, उससे उसके राउंड अबाउट मोर और लेस। सुभान अल्लाह जी। चलें, अच्छा, सलाम अब करे जा रहे हैं हम। ये इस्लाम की तारीख में जो कंस्ट्रक्शन उस टाइम जी, पे थी, वलीद इब्न मालिक के दौर में हुई। सही 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 सही। अल्लाह अकबर जी। नाउ वी आर गोइंग टू से सलाम। Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad And we're sallallahu going alaihi to show wasallam. you a lot of landmarks related to the life of Prophet ﷺ. Inshallah, inshallah. Subhanallah. Okay. So Ali bhai, the house of Sayyidina Abbas almost used to be in this side. Right. His house was changed to be almost in this side, basically. Right, right, right.
एंट्रेंस पे, बाबू सलाम की एंट्रेंस पे। So this house was almost here. And also in this area was the house of Sayyidina Jafar, and also the house of Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu was almost in the area behind. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। So जैसे मैंने आपको पहले बताया था, the Hadaf Masjid Nabawi basically, तो ये Hadaf Masjid Nabawi है, that means कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इतनी होती थी। अभी हम सैयदना उमर के ज़माने की सफ़े अव्वल में चल रहे हैं। सही बेसिकली। और आपके राइट साइड वाला जो एरिया है ये सैयदना उस्मान के ज़माने की सफ़े अव्वल है। अच्छा, ओके। यस, ओके। ये जो मुसल्ला है, यस, ये सैयदना उस्मान के ज़माने की सफ़े अव्वल है बेसिकली। ओके, और ये शैंडलियर दिखा रहे हो, ये इसके बिल्कुल नीचे जो एरिया है यहाँ पे सैयदना उमर नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा, अल्लाह अकबर जी। ये जो शैंडलियर है इसके एग्जैक्ट नीचे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और उनको शहीद किया गया रज़ी अल्लाह ताला। तो ये मस्जिद नबी यानी एक्सटेंड हो गई थी सैयदना उस्मान गनी सलाम। सैयदना अब्बास का पहले घर तकरीबन इस जगह पे होता था, फिर बाद में चेंज हुआ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और Ali bhai, I want to welcome your audience in a one specific area. Right. Because you don't know this. Okay. Are you guys ready? Yeah. Welcome to the houses of Prophet ﷺ. Allahu Akbar. Assalamu alaikum जी। So आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के घरों में खुशामदीद है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की अज़वाज मुहतारात रहती थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे वो अज़वाज मुहतारात रहती थी जो कि जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 7 हिजरी यानी फतह खैबर से पहले हुई थी। तो मोर और लेस ज़्यादातर उम्महातुल मोमिनीन इस एरिया में रहती थी। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खड़े, अब हम सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर जी जी, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर। और यहाँ से अजान भी दी जाती है। सैयदना बिलाल इधर से अजान देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलें जी, सलाम करते हैं। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला अबू बकर, अस्सलामु अला उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दुआ करते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुज़रे, हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ज़िंदगी गुजारें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी बासित भाई, यहाँ पे जहाँ पे भी हम सलाम करके हैं ना, इस एरिया में अम्मा हफ्सा का घर होता था। राइट राइट। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं और रसूल बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। और इसके पीछे सैयदना आयशा का घर था, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते चलो, जहाँ पे हमने सलाम किया वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 7 मीटर की दूरी पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अब आप पता किधर आ गया अली भाई? जी, वेलकम टू द हाउस ऑफ सैयदना उस्मान। This place, yes. Usman Ghani रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में कुछ आमदी। And it was a big house, right? He had 2 houses. Yeah. So Usman Ghani radiallahu anhu had 2 houses. One of the houses was here, was a small house. Then there was a bigger house connected to it. Right, so, right. I need you to look over here, please. So between the house of Sayyidina Usman and then there used to be a small street which used to go towards Baqi. It's called Zukak al-Buki. Right. And right next to, on the right side of the street, used to be the house of Sayyidina Abu Bakr. So between the house of Sayyidina Abu Bakr and between the house of Sayyidina Usman, there used to be a street. And when Usman bin Affan radiallahu anhu, when he was actually, he embraced martyrdom, what actually happened is the people who came to murder him, they went on the top of his small house, then they went to his bigger house to actually murder him. So उनकी शहादत कुछ इस तरीके से हुई थी। ओके, नाउ अभी हम जिस एरिया से गुजरे हैं यहाँ पे पुराने जमाने में एक गली होती थी, उसका नाम था जुकाक के हबशा। तो जुकाक के हबशा वो गली थी जहाँ पे हबशा के मुहाजिरीन रहा करते थे इस एरिया में बेसिकली। अच्छा, अभी हम जिस एरिया में आ गए, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया। इन दिस एरिया a lot of companions of Prophet ﷺ used to live over here, starting with Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. So ये हमने वहाँ से भी देखा था। So again, brothers and sisters, this is the Rawza and this used to be the house of, ये जहाँ पे ये जो बोर्ड सा लगा हुआ है, या this area is the house of Abu Ayyub Ansari Abu Ayyub al-Ansari रज़ियल्लाहु अन्हु। और 2 floors थे उनके घर के। जी बिल्कुल, कमाल है जी, क्या मोहब्बत थी अबू अय्यूब अल-अंसारी की। एंड लेट मी टेल दी ऑडियंस, अबू अय्यूब अल-अंसारी इज़ अ मार्टिर। और सुभान अल्लाह, ये इनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बासित भाई, तुर्की में जी। Okay, and also if you can please show this area, जो
जितने भी ज्यादातर मुहाजिरीन सहाबी जो हिजरत करके आए ना वो यहाँ पे रहते थे। ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर, उसके पीछे सीध में सबके तरतीब वाइज घर थे। तो अली भाई यहाँ पे जो ज्यादा जमीन थे ना एक सहाबी थी, उनका नाम था हारसा इब्न नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हारसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े फेमस सहाबी है, उनकी ज्यादा जमीन थी। उन्होंने मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता वक्फ करनी शुरू कर दी। उन्होंने इतनी वक्फ कर दी कि वो एंड के अंदर वो सफ़ा के अंदर शिफ्ट हो गए। और रसूल अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा ख्वाब में आया, ख्वाब में अल्लाह ने जन्नत दिखाई। अल्लाह ने जब जन्नत दिखाई उनको, तो उनको किसी की कुरान की तलावत करते की आवाज़ सुनाई। तो उनको पता ही सोचा ये तो हारसा इब्न नुमान की आवाज़ है रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो फिर उन्होंने उनको बताया, और फिर वजह क्या थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ जन्नत में सुनी। He used to take care of his mother in an amazing way. So that was because of the prayers of his mother, basically. And he had an opportunity to donate his land to most of the Muslims who actually came from Makkah and didn't have much at that point of time. सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी जी जी। इवन सैयदना अली का जो घर है वो भी उनकी ज़मीन, वक्त की हुई ज़मीन के ऊपर बना। So many other companions as well, you know, which were staying in this area. और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर मुहाजिरीन साहब को बेसिकली करते हैं। अच्छा अली भाई, इधर कबीला रहता था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसका नाम था बनु जुरैक। बनु जुरैक कबीले के सहाबी बड़े इंपॉर्टेंट है, असद इब्न जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु। सही सही। तो वो कबीला इधर था बिल्कुल ठीक। जो ये वही है असद इब्न जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी अंसार सहाबियां और इनकी बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में वेरी फेमस। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स हैं जी मुहाजिरीन, सॉरी उसमें अंसार में। अंसार में से। यस यस यस। अब हम आपको बिफोर वी साइन ऑफ will show you two key things, right? Basically जिसके बारे में काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। Okay. अब हमने अंदर से तो कवर कर लिया, हम बाहर से थोड़ा सा ना ठीक है। and then we can inshallah Two key things जिनके बारे में मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, अब हम वो चेक करने जा रहे हैं जी। right। बासित भाई, मैं आस्क यू, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो घर है जी जी, उसकी लोकेशन? यस एब्सोल्युटली। उनका घर जहाँ से हम आए हैं ना, जहाँ पे मैं आपको दिखाया था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा घर है, ठीक है, उसके एक तरफ था। ओके। अच्छा, मैं आपके ये व्हाइट कलर का जो बड़ा डोम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। जो व्हाइट कलर का जो डोम है ना, इसके नीचे दो लैंडमार्क्स हैं। एक लैंडमार्क है जहाँ पे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते थे। दूसरा लैंडमार्क वो है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु used to lead the prayers in Masjid an-Nabawi, and he was attacked and he embraced the shahada. So that happened over there basically. And then you have the green dome. Right in front of the green dome there's a small white color dome. I'm not sure, we just need to zoom a little bit over here. But can you see this small white dome this over here? So this sits right at the top of the place where Prophet ﷺ's wives used to stay in Medina, basically. That's very important for us to know. ये जो हुजरा फातिमा है वही था, हजरत अली भी वहीं पे रहते थे ना हजरत फातिमा के साथ? जी जी, जो if you like we can go to a specific angle and show right from there. ओके, सो बासित भाई, ये पिवटल चुके पॉइंट है गुम्बद, तो ऑडियंस यहाँ से ट्रैक आउट कर लेंगे कि अब हम जो उन्हें मदीना का खाका बताने लगे। सो यहाँ पे खड़े होके अगर मैं आपसे पूछूं कि बाज़ार कहाँ था, यहूदियों की जगह कहाँ पे थी, और एक बार फिर सहाबा को रिवाइज अगर हम करें उनकी लोकेशन, तो ये सामने तो चलें अबू अय्यूब अल अंसारी जो हमने दिखाया। अब आगे अगर हम चलें तो बाज़ार एंड वो यहूद की जो थी लोकेशन। ओके, सो पहले मैं आपको एक चीज़ कंक्लूड कर दूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 90 to 95% जो लैंडमार्क्स है ना, ज़्यादातर लैंडमार्क्स जुनूबिया एरिया में, जो कि ये एरिया और इस तरफ पीछे वाला एरिया, ज़्यादातर लैंडमार्क्स जो है ना इस एरिया के सही है, ठीक है। और जब आपने बात की है ना जो मुहाजिरीन सहाबी जो हैं, मुहाजिरीन सहाबी गुंबद खदरा के दाहिनी तरफ रहते हैं, ठीक है, ठीक है। All the companions of Prophet who migrated, they used to live on the right side of the dome, actually. And some of the people who came laterwards from Mecca, they used to actually live here. Right. A few of them on the left side, actually. Right. It's important for us to know. Okay, so let me show you the area where one of the important Jewish market used to be. So you see the Green Dome is right behind us. Right. And towards this direction, if you go, there is a Masjid Bilal. A lot of people know where Masjid Bilal is actually. Yeah, so if you keep walking straight from here, you'll be able to see that mosque actually. Yes. So Masjid Bilal is exactly the place where there used to be a very important Jewish market. वहाँ उस वक्त का एक बड़ा important tribe है जिसका नाम है बनु कैनुका। बनु कैनुका जो tribe है, they used to monopolize on
the trade. So their market used to be over there. तो रसूल सल्लल्लाहु के दौर का एक छोटा सा वाक़या, एक सहाबिया है, a female companion of Prophet ﷺ. She went to the Jewish market to buy something. So she was sitting down in order to get more inquiry about the product itself. And somebody by mischief tied her clothes to a chair or wherever she was sitting down. And when she got up, her clothes unfortunately got torn, right? तो उस वक्त एक काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, हम अपनी मार्केट बनाएंगे. Then he created सूक अल-मनाखा, which is that area. जो आपने शुरू में भी दिखाई थी जब हम यहाँ जी सूक अल-मनाखा. excellent माशाल्लाह. So now the audience can actually visualize कि उस टाइम का मदीना कैसा था. अल्लाहु अकबर. और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर भी जो हमें शुरू में बासित भाई ने दिखाया था वो इस साइड पे है. इस साइड पे है. और ये जो है बाबू सलाम, और ये फिर गुम्बद आगे आप देख सकते हैं. अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद. सो दिस ब्रिंग्स टू एन एंड सुभान अल्लाह एन अमेजिंग जर्नी. बासित भाई मैं तो आपके साथ था, तो जो मेरी फीलिंग है सुभान अल्लाह, रीलिविंग दैट दोज मोमेंट्स. और वो मैं मेरी आदत है, मैं बड़ा पिक्चराइज भी करता हूँ और विजुलाइज करता हूँ. तो मैंने तो बड़ा इंजॉय किया, विजुलाइज किया, सीरा भी पढ़ाई है माशाल्लाह, उस हवाले से भी विजुलाइज किया कि एक एक प्लेस वहाँ क्या होता था और क्या मतलब वो ज़माना होता होगा, वो रोड्स कैसी होती होंगी. सुभान अल्लाह. सहाबा के घर. आई होप ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा. कुबा का भी जो था माशाल्लाह एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय यू, बारक अल्लाह फी बासित भाई. बहुत इंजॉय किया मैंने, एंड आई होप ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा. सो डू गिव योर कमेंट्स इंशाल्लाह ताला. और इसका पर्पस ये था, इस सारे व्लॉग आप इससे कह लें चले, इसका पर्पस ये था कि जैसे हमने बात की, मैंने बासित भाई ने, कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर क्लींजिंग शुड हैपन, स्पिरिचुअल क्लींजिंग, इवन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, और फिर ज़ाहिर है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह. सो वो तब तक मेरा ख्याल बासित भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक वो एक एक मोमेंट को हम रीलिव ना करें और वो इंटरनलाइज ना करें उन चीज़ों को, और वो सहाबा के हमें नाम ना पता हो जो कनेक्टेड थे रसूल वसल्लम के साथ. सो एनी लास्ट वर्ड्स? Yes, there is one last word, the most important one for me. That is कि जब आप मैं आपको जब सलाम कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप यानी आपकी सलामती और रहमत और बरकत हो, तो आप भी मुझे कहेंगे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप भी सलामती और रहमत और बरकत हो अल्लाह की. तो इसी तरीके से जब आप मस्जिद नबी में जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम भेजते हैं, एंड इफ़ यू कैन से सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, किसी भी अच्छे तरीके से सलाम करें, तो तमाम मज़ाहिब का इसके ऊपर इज्तिहाद है कि वो सलाम का जवाब देते हैं. बेशक. एंड वी नो ही प्रॉफिट सलाम जो जवाब देंगे द बेस्ट पॉसिबल देंगे. सो इमेजिन जस्ट ही सेइंग एनीथिंग लाइक मे पीस बी ऑन यू, ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू, प्रॉफिट सलाम, ही सेइंग दैट टू यू इज लाइक that's it. That's it. So we're gonna leave you with that. Jazakallah. तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है रसूल अमी खातमुल मुरसलीन.